Hello, good morning, children. How are you? I hope you are fine. As we were discussing the chapter, The Sound of Music, and this is the first part which I have explained you today. In which first part, what I have explained you that it is the story of a girl, Evelyn, who was completely deaf, and her deafness was first notified by her parents when she was 8 years old, as they were calling her name again and again, and the girl was not listening them. Or we can say the girl was not making any movement. Then the parents came to know that something is wrong with that girl, and the parents went there, went and they did not notice that because they were thinking that it is usual. But after 11-year old, they came to know by her headmistress the girl had totally lost her deafness, because the girl also hid, the girl also concealed her deafness from her parents as well as teachers and friends also. But when she was in 11-year old, then her parents came to know, because they had gone to the specialist, and the specialist informed them that your child is deaf, and you also informed them that you should take some hearing aid, and you should also admit the girl in the deaf school. Everything was black for that girl or maybe the parents, because उसकी जो hearing sense है वही खो दी उसने, तो वो क्या करेगी फ्यूचर में. But the girl did not give up hopes, and she started her life as a normal child like other used to live. And what happens, the girl was totally much interested in music, in the field of music. So she started to learn music, and first of all everybody including the teachers also, उसके teachers ने भी किया, disgrace किया, they disgraced the girl. But only one teacher was there, that was Ron Falls, who inspired the girl, जिसने उस बच्ची को inspire किया. And he also helped the girl to learn the music by her sense, not by the listening. और जब उसने different notes बजाए, दो different नोट्स ड्रम बजाए जो डिफरेंट नोट्स लेके पैदा हुए थे, जैसे कि उसने एक ड्रम को अपनी वेस्ट से ऊपर फील किया, एक ड्रम को अपनी वेस्ट से नीचे फील किया, एंड द गर्ल वाज गेटिंग वाइब्रेशन. वो सब क्या हो रहा था, देन शी हैड अ सेंस, नॉट शी वाज नॉट लिसनिंग द म्यूजिक, नो, शी वाज गेटिंग द वाइब्रेशन फ्रॉम द नोट्स. गॉट इट? एंड आफ्टर दैट प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस हुई कई बार, रिपीटेड, that was repeated practice, and after doing this practice the girl never looked back in her life. और फिर उसने क्या क्या अचीव किया, this is also very important, कि मतलब 3 साल का कोर्स किया. she got a 3 years course in the Royal Academy of Music, and she also scored one of the best marks of the history of Royal Academy, and she also played orchestra के बाद क्या किया, उसने अपनी सोलो परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी. गॉट इट? एंड आफ्टर गेटिंग दिस अचीवमेंट शी नेवर फेल्ट दैट शी इज अ हीरो, और वह कोई हीरोइक फील नहीं उसको कहा कि यदि आपका गोल आपके सामने है, आपका टारगेट आपके सामने है, आप उस टारगेट को डिटर्मिनेशन से, स्ट्रॉन्ग डिजायर से यदि फॉलो करोगे, you will get that target. And the same was also done by the girl. She was determined what she have to do, and her goal was clear, to be a musician, and she got this position. Got it? Is that clear? और कह रही है कि this is not the practice of 2 hours or 3 hours, no, this is the practice of days and month where she got. Understand? Is that clear? And only one person whom she was making responsible for that was the Ron Forbes. कहती है कि वो 2 hours discussion, जब जो प्रेस वाले थे उन्होंने जब ये इंटरव्यू लिया था गर्ल का, तो उसको बताया 2 घंटे के डिस्कशन के बाद में उसने बताया कि इन सब के पीछे ए मैन विद ब्यूशी बियर्स गिव मी अ ट्रबल, एक दाढ़ी वाला इंसान जिसने मुझे हमेशा परेशान किया. परेशान यहाँ पे ये नहीं है
कि उस बच्ची को प्रताड़ना मिली। परेशान का मतलब होता है जिसने मोटिवेट किया, जिसने स्ट्रगल करवाया, दैट वाज द टीचर। ओके, शी लाफ्ड इट इज, और फिर वो क्या कहती है, इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस। कहती मैं पूरी लिप्स नहीं पढ़ती थी, मैं कंप्लीट चेहरा एक्सप्रेशन देखती थी उसके टीचर के। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद स्कॉटिश लिल्ट, लिल्ट का मतलब होता है वे ऑफ स्पीकिंग, और वो स्कॉटिश गर्ल थी, शी बिलोंग टू स्कॉटलैंड, तो उसकी जो बोली थी, उसकी जो लैंग्वेज थी, उसमें स्कॉटिश पुट आता था, है ना, इन दैट सेम वे। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, कह रही कि मैं बोल सकती हूँ अच्छे से, बिकॉज व्हेन आई वॉज 11 ईयर ओल्ड टिल आई कैन लिसन, आई कुड लिसन, मैं सुन सकती थी। सो नॉट ओनली she says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. और कह रही कि वो फ्रेंच लैंग्वेज और जापानी लैंग्वेज दोनों उसने सीखी हैं। Who learned these languages? The girl. Now, as for music, she explains, कहती है कि म्यूजिक it pours in through every part of my body. कह रही है कि म्यूजिक फ्लो एंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, मेरे हर बॉडी के हर पार्ट में म्यूजिक फ्लो करता है। इट टिंगल्स मी इन द स्किन, स्किन में आता है, टिंगल्स का मतलब होता है कॉजेज अ स्लाइट प्रिकिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन, ये मुझे चुभता है, मेरी स्किन में आता है ये म्यूजिक। माई चीक बोन्स, मेरे चीक बोन्स में म्यूजिक, इवन इन माई हेयर, मेरे बालों में भी म्यूजिक की ससराहट फील करती है। यानी कह रही कि मैं सुन नहीं सकती तो क्या हुआ, मैं म्यूजिक को सेंस कर रही हूँ, मैं म्यूजिक को फील कर रही हूँ, आई एम फीलिंग द म्यूजिक, इवन आई एम नॉट एबल टू लिसन बट आई एम फीलिंग एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी में, इवन इन माई हेयर, इवन इन माई चीक बोन्स, आई कैन सेंस द म्यूजिक। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जाइलोफोन बताया था एक प्रकार का यंत्र होता है, वाद्य यंत्र। She can sense the sound passing up the stick into her fingers. जब जाइलोफोन बजाती है, then she can sense the sound in her fingers. Fingers में जो स्टिक से वो करती है ना, then she can sense the sound in her finger. She can feel the resonance. जो साउंड होता है ना, resonance का मतलब होता है साउंड, इको, इको ऑफ द साउंड। She can feel the resonance flowing into her body on a wooden platform, और whenever she on the wooden platform, जब भी वो किसी wooden platform पे होती थी, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet. तो वो क्या करती थी, अपने जूते उतार देती थी। Why? To feel the vibration. नंगे पैर खड़ी हो जाती थी स्टेज पे, वुडन पार्ट पे, ताकि वो म्यूजिक का वाइब्रेशन फील कर सके। She can feel the vibrations pass through her bare feet and up her legs, और वो पैरों से होता हुआ लेग्स तक आ जाता था, यानी नीचे ऊपर तक आ जाता था। कितना कितना माइंड लगाती थी वो ना। She can feel the music and that is why she took her shoes whenever she perform, and she can feel that through her, we can say feet, we can say legs. Not surprisingly, Evelyn delight her audiences. In 1999, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Socialist of the Year Award. कह रही कि in 1991, and this is not a surprise, उस बच्ची को एक और अवार्ड मिला। She was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Socialist of the Year Award, says master percussionist James Bladds. उसके बारे में बोलता है, एक मास्टर है, परक्यूनिस्ट है, जेम्स ब्लेड्स, क्या कहता है, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. वो कहता है, टीचर कहता है कि भगवान ने उसका हियरिंग सेंस ले लिया, उसकी डीफनेस बना, उसको डीप बना दिया, लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्रा दे दिया उसके बदले में। मिस्टर जेम्स ब्लेड इज सेइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे दिया उसको, असाधारण कुछ दे दिया उसको। What we hear she feels, कह रहा कि जो हम सुनते हैं वो फील करती है। जेम्स ब्लेड इज सेइंग कि God has taken his hearness, we can say hearing, but he has given her in return of extraordinary things, like we can hear
she can sense, she can feel for more deeply than any of us, और हम सबसे ज़्यादा गहरा. That is why she expresses music so beautifully, or that is the reason behind her success, because she can sense the music. She can sense the music. That is why she can express music so beautifully. इसीलिए वो म्यूजिक को बड़ी सुंदरता से एक्सप्रेस कर सकती है. एवलिन कॉन्फेस मतलब होता है एडमिट्स, मानती है, दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक. वर्कहोलिक मतलब होता है पर्सन हु ऑलवेज वांट टू डू द वर्क, यानी काम नहीं रोकती थी, वो हमेशा काम करती रहती थी. आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन harder than classical musicians. कह रही है I just want to do the work and I often work harder than the person who plays the classical music. जो शास्त्रीय संगीत करते हैं उनसे ज़्यादा हार्ड वर्क करती हूँ मैं. But the rewards are enormous. Apart from the regular concert, Evelyn also gives free concert in prison and hospitals. अपनी रेगुलर परफॉर्मेंस के अलावा एवलिन फ्री परफॉर्मेंस भी करती थी. कहाँ? इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल. कैद में, कैद होते हैं, कैदी होते हैं जेलों में, एंड हॉस्पिटल्स में. यानी वो सोशलिस्ट, वो समाज सेवा भी करती थी. वो कैदियों के सामने हॉस्पिटल्स में फ्री कंसर्ट करती थी, म्यूजिक की परफॉर्मेंस देती थी. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रियोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, एंड यू नो शी ऑल्सो गिव्स एजुकेशन, और शी ऑल्सो एडुकेट द यंग म्यूजिशियंस. यंग म्यूजिशियंस को पढ़ाती थी, यंग म्यूजिशियंस को सामने परफॉर्मेंस देती थी, ताकि बच्चे निकले वहाँ से, अच्छे अच्छे बच्चे निकले जो म्यूजिक में जाएं. एंड रिटलिन ऑफ बिथोवन फाउंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज फंड फॉर चिल्ड्रन. रिटलिन कह रहा है, क्या कहती है? सी इज अ साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन. ये जो लड़की है ना एवलिन, ये एक इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा है फॉर द डीफ चिल्ड्रन, बहरे बच्चों के लिए. दे सी दैट देयर इज नाउ एवर दैट दे कैन नॉट गो. व्हाई? बिकॉज आफ्टर वॉचिंग द परफॉर्मेंस, आफ्टर कमिंग टू नो अबाउट द स्ट्रगल ऑफ द एवलिन, नथिंग इज इम्पॉसिबल. कि वो सोचते हैं बच्चे कि कुछ भी कर सकते हैं हम भी. कितना स्ट्रगल किया है, डीफ लड़की ने म्यूजिक सीखा. दिस इज नॉट द स्ट्रगल, एब्सोल्युटली दिस इज द स्ट्रगल. तो वो एक प्रकार की इंस्पिरेशन है डीप बच्चों के लिए. यहाँ तो नॉर्मल बच्चे नहीं पढ़ पाते, इतना कुछ अचीव नहीं कर पाते. वो तो एक बहरी लड़की है, वो उसने कितना अच्छा अचीव किया, कितना बढ़िया अचीव किया. वो एक प्रेरणा थी सबके लिए. एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. कह रहे राइटर कह रहा है कि द गर्ल अकम्प्लिश्ड हैज गॉट एक्वायर्ड व्हाट मोर देन मोस्ट ट्वाइस हर एज. जो उसकी एज से डबल एज के बंदे हैं उनसे ज़्यादा प्राप्त कर चुकी है वो लड़की. यस एब्सोल्युटली, उनसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है उसको, उससे ज़्यादा पॉपुलरिटी मिली है उसको. शी गोट मोर देन दैट. शी हैज़ ब्रॉट प्रोसिक्यूशंस टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा. एक प्रकृति तबला वादक जो होते हैं उस चीज़ को वो ऑर्केस्ट्रा से भी आगे लेके आई. हु ब्रॉट दिस? द गर्ल. एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग. और उसने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि यदि आप ऐसे परफॉर्मेंस करोगे या अप्रकिनिस्ट की तरह परफॉर्म करोगे तो ये बहुत ज़्यादा देर तक चल सकता है. शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्टेड. यस एब्सोल्युटली, वो न केवल हैंडीकैप्टेड को इंस्पिरेशन दे दी, जो कहते हैं ना कि अयोग्य जो होते हैं, जो मतलब अपाइज होते हैं, न केवल उनको इंस्पिरेशन दी उसने, उनको भी इंस्पिरेशन दी कि जो जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहते हैं. ओके, पीपल हु लुक टू हर एंड से, लोग उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं इफ शी कैन डू आई कैन डू. कह रहे कि यदि ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ. द पीपल, द स्टूडेंट्स, द पीपल्स, लोग कहते हैं कि अगर ये लड़की कर सकती है तो आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ. क्यों? वो तो बहरी है बेचारी, अगर वो कर सकती है तो वो क्यों नहीं कर सकते. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. और राइटर कह रहा है कि उसने लोगों को बहुत सी खुशियां दी हैं. She has given enormous pleasure to millions people.
So my dear children, that was the chapter which I have explained you. In this chapter we came to know the first part of this, that says that एवलिन के लाइफ के बारे में बताया. 8 year, when little bit noticed by her parents that girl is going to be deaf, but they did not pay any attention, or maybe she was trying to hide this problem from her parents. But when she was getting less mark in her study, then she came to know, got it, but she came to know that 11, when she was 11 year old, she came to know that she was going to, we can say, lose her sense of hearing. And after that, जब ऐसा कुछ हो जाता है इंसान के साथ, तो ऑब्वियसली द पीपल वुड गिव अप द होप्स. लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. वो दोबारा से खड़ी हुई, और ऐसा खड़ी हुई कि उसने वर्ल्ड में अपना नाम कमाया. बीइंग ए डीफ चाइल्ड, यार एक अजीब बात है कि उसने अपनी कमजोरी को अपना ताकत बनाया. यस, वो और कुछ भी कर सकती थी, और भी फील्ड में जा सकती थी, लेकिन उसने उस चीज को अपनाया जो सुनने में ही काम में आता है. जैसे कि म्यूजिक हम फील नहीं कर सकते, हम सुन सकते हैं म्यूजिक, और वो उसी फील्ड में चली गई. व्हाट इट, सो दैट वाज अ वेरी, वी कैन से, ग्रेट अचीवमेंट बाय द गर्ल. और उसमें उसकी सबसे ज़्यादा हेल्प की उसके टीचर ने. मैंने बताया था कि कोई न कोई हमारे पीछे ज़रूर होता है, कोई न कोई सक्सेस, हमारी सक्सेस के पीछे हम कोई न कोई होता है जो हमारी इन काबिलियत को पहचान सकता है, जो हमारी ये जो कैपेबिलिटी है ना, इनको पहचानता है. मे बी जो पेरेंट हो सकता है, टीचर हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं. तो उसके गुरुजी ने उसको पहचाना, रॉन फॉक्स ने. उन्होंने इस लड़की की हेल्प की, और आफ्टर दैट उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. रॉयल अकेडमी ऑफ लंदन हिस्टोरिक मोमेंट था उसके लिए. उसने बेस्ट स्कोर प्राप्त किया, ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्मेंस दी, उसके बाद में उसने सोलो परफॉर्मेंस दी. दैट वाज आल्सो ए ग्रेट परफॉर्मेंस बाय द गर्ल. एंड आफ्टर दैट, यू नो, शी ऑल्सो गॉट द नेम एंड फेम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. उसके बाद में कह रही है कि ये स्ट्रगल था, ये कोई हीरोइक अचीवमेंट नहीं है. और आफ्टर दैट क्या कह रही है कि सरप्राइजिंगली 1991 में उसको अवार्ड मिला, सोशल प्रेस्टिजियस सोशलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. और उसके बारे में कहते हैं कि वो कहती है कि मैं केवल काम करना चाहती हूँ. मैं ऐसी लड़की हूँ कि आई नेवर ट्राई टू स्टॉप एट होम. आई जस्ट वांट टू बिजी. इंटरनेशनल शेड्यूल इतना हैक्टिक था उसका. आई जस्ट वांट टू बी बिजी फॉर दिस वर्क, हो ना. और कह रही कि आई वांट टू बी फेमस फॉर द वर्ल्ड, और वी कैन से इन द वर्ल्ड. कह रही कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत काम करती हूँ. और इसी बीच वो एक सोशलिज्म, सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूशन कर रही है. कैसे? वो she used to sing, she used to perform in the prisons and hospitals, and that is the free concert. ये सब उसका क्या था? फ्री था. वो सब फ्री करती थी. Got it? No, she is used to giving free performance to the, we can say, and she was also inspiration for the signing children. बच्चों के लिए वही इंस्पिरेशन थी, और लोग उसको देखते थे कि यार ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते. So that was also very nice for her, for the girl. और उसने क्लासिकल म्यूजिक को ऑर्केस्ट्रा से ज़्यादा, क्लासिकल म्यूजिक को ऑर्केस्ट्रा से ज़्यादा तवज्जो दी, ज़्यादा बढ़ाया उसको. तो डियर चिल्ड्रन, दीज आर दैट इज द चैप्टर विच आई कंप्लीटेड. और लोग देखते थे तो इंस्पिरेशन मिलती थी उसको कि सी कैन डू, आई कैन डू. द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर आर, हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक? 17 ईयर ओल्ड. कहाँ पे 16 लिखा, कहीं 17 लिखा है. When was her deafness first noticed? When was it confirmed? Her deafness was first noticed when she was 8 years old, and it was confirmed when she was getting less marks and she was 11 years old. Then it was confirmed. Who helped her to continue with music? What did he do and say? म्यूजिक सीखने में उसकी किसने हेल्प की? रॉन फॉक्स ने. और उसने क्या कहा, क्या किया उसने? He played the different note at different sound. 2 ड्रम बजाए डिफरेंट नोट पे. और उसने कहा क्या? उसने कहा कि जस्ट फील इट, डोंट ट्राई टू लिसन, जस्ट ट्राई टू फील इट इन अ अदर वे. दूसरे तरीके से फील करो. नेम द वेरियस प्लेसेस इन कॉलेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स. जैसे प्रिजन्स है, हॉस्पिटल्स है, यंग चिल्ड्रन के लिए, वहां पे उसने परफॉर्मेंस दी. हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक? एवलिन म्यूजिक कैसे सुनती थी? एवलिन म्यूजिक सुनती नहीं थी, एवलिन म्यूजिक फील करती थी. She used to feel the music.
She used to feel the music by her cheekbones. Even she could feel the music by the hair. बालों से भी म्यूजिक को फील कर सकती थी. And you know, she used to perform on the wooden, we can say, car on the, without having any shoes, so that she can feel the music through her fingers, or we can say through her legs in the body. Complete body का हर एक पार्ट म्यूजिक को फील कर रहा था. Who was listening these things? The girl. Each and every part of her body was getting music. So my dear children, I will explain you the questions. Also, these are 1 2 3 4 5 questions are there, and the last one is very important. How does Evelyn hear music? कैसे वे म्यूजिक को hear या सेंस करती थी? वो hear तो करती नहीं थी. So this is the first part of the chapter, the sound of music, and second part we will discuss, that is about what? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, वो भी एक ग्रेट शहनाई वादक हैं. उनकी जर्नी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और दोनों के क्वेश्चंस में एक साथ दूंगा. इज दैट क्लियर एवरीबडी? आई होप यू गॉट दिस चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टूड दैट चैप्टर दैट आई हैव कंप्लीटेड. दिस इज वेरी इंस्पायरिंग चैप्टर फॉर अस. यू कैन ऑल्सो बी इंस्पायर्ड बाई रीडिंग दिस चैप्टर. एक ही चीज़ है, गोल हमारे सामने होना चाहिए. हमारा हार्ड वर्क उसको उस तक हमें लेके जाएगा. हम जिंदगी में भी असफल नहीं हो सकते यदि हमारी चीज़ें हमारे सामने क्लियर है. ये स्टडी नहीं, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो, गॉट इट. लेकिन काम वही करना चाहिए जिसमें आपकी रुचि हो. इज इट क्लियर? टिल देन बाय.